Hello student, in the previous video we have discussed the congruency of triangles and the equality properties of triangle. The equality properties of triangles are, if in a triangle two sides are equal, then their opposite angles are equal. Its converse also there. If in a triangle two angles are equal, then their opposite sides are equal. Now there are some properties related to inequalities in a triangle. The inequalities in a triangle are, in a triangle, if the theorem, here the theorem is 7.6, in a triangle, if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the longer side is greater. इक्वल है तो इक्वल साइड इक्वल एंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये इक्वलिटी प्रॉपर्टीज हैं. इनइक्वलिटीज में यदि इन अ ट्रायंगल, लेट अस टेक हियर, देयर इज अ ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC two sides are unequal. AB and AC are unequal, and here in this diagram AC is greater than AB. In triangle ABC, AC is greater than AB. Okay, then the angle opposite to this greater side or longer side is greater. तो यहाँ AC का opposite angle क्या है? Angle B. So this implies that angle B will be greater than angle C. ये जो smaller side है इसका opposite angle C है और longer side है इसका opposite angle B है. Angle B is greater than angle C. So this is a property related to inequality in a triangle. इसका converse भी true है. Converse क्या हो जाएगा? The next theorem is the converse theorem 7.7. ये क्या होगा? In a triangle, the side opposite to greater angle. In a triangle, side opposite to greater angle is longer. ये किस तरीके से होगा देखिए. इन अ ट्रायंगल, suppose in triangle PQR, angle Q is greater than angle R. Let us take here angle Q is greater than angle R. So in triangle PQR, angle Q is greater than angle R. Then side opposite to greater angle, which is the side opposite to angle Q, is PR. So PR will be greater than the side opposite to a smaller angle, PQ. यानी जो बड़ा एंगल है उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा और जो एंगल स्मॉलर है, छोटा है, उसका अपोजिट साइड भी छोटा होगा, स्मॉलर होगा. तो ये कन्वर्ट्स है एक दूसरे के. इसका कन्वर्ट्स ये है. तो यहाँ पर इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इनका प्रूफ नहीं है. डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट आपको याद रखना है और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करेंगे. देयर इज वन मोर इनइक्वालिटी. ओके, वी हैव डिस्कस्ड लेटर. The next theorem for inequality in a triangle is the sum of any two sides is greater than the third side of the triangle. यहाँ पर ये suppose हमने एक triangle लिया हुआ है. Suppose there is a triangle ABC. So in triangle ABC, the theorem is sum of any two sides means AB plus AC is greater than BC. यहां पर किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. यदि इन्हीं दो का सम थर्ड साइड के इक्वल आ गया तब क्या होता है? पॉइंट्स आर कोलिनियर, माने वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में होंगे, जो हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया हुआ है ना. तो यहां पर ये एक इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब ये एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, AB plus AC will be greater than BC. If we combine AB and BC
और AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, या फिर BC और AC का सम और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि आपके प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक मन में आपके आ रहा होगा कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि हमने BA को प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट D सच दैट AD इज सेम एज AC, और D को हमने C से ज्वाइन कर दिया। हमने क्या किया, BA को प्रोड्यूस किया D तक और C को D से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया BDC, एक ट्रायंगल क्या हो गया BDC, और एक नया ट्रायंगल हमको मिल गया ADC। तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ADC व्हाट वी हैव, AD इक्वल्स टू AC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, हमने यहां पर BA को प्रोड्यूस किया था, तो AD और AC इक्वल है। अब AD AC इक्वल है तो क्या होगा, ये एंगल 1 और एंगल 2, दिस इंप्लाइज that their opposite angles must be equal, angle 1 equals to angle 2। क्यों, क्योंकि angles opposite to equal sides are equal, ये हमने equality properties पढ़ा हुआ है। अब now look at here, angle 1 equals to angle 2, okay। now if we add this angle ACB to angle 2, so what we have, angle 2 में यदि हमने एंगल ACB को ऐड कर दिया, देखिए अभी 1 और 2 इक्वल है, यदि हमने किसी एक साइड में कोई एक वैल्यू ऐड कर दी तो वो साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, माने ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अभी ये दोनों इक्वल थे, इसमें हमने एक पार्ट ऐड कर दिया, एक एंगल ऐड कर दिया, तो ये एंगल ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल 1 से। अब देखिए ये एंगल क्या है, एंगल 1 विल बी स्मॉलर देन angle 2 plus angle ACB becomes angle BCD, angle BCD, ओके। अब देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये एंगल BCD माने ये एंगल इससे ग्रेटर है, सो इन ट्रायंगल BCD what we have, BCD the side opposite to greater angle that is AD, इसका अपोजिट साइड क्या है, AD will be greater than which one, the side opposite to angle 1 that is BC, and AD is what, sorry in BCD ये हो जाएगा BD, AD नहीं होगा, ये क्या होगा BD, BCD इस एंगल का अपोजिट साइड जो है वो BD होगा, और BD क्या है, इट इज अ सम ऑफ BA प्लस AD, BA प्लस AD is greater than BC, और AD क्या है, AD is same as AC, so BA plus AC will be greater than BC, why, because AD equals to AC, और ये हमारा ये पार्ट था फर्स्ट वाला AB plus AC, AB plus AC is greater than BC। तो ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करके यदि आप इसको यहाँ इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो आपका AB will be smaller than AC plus BC, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रूफ था, ओके। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 7.4। द क्वेश्चन 1 इज शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है जो हम लोग कई बार यूज करते हैं, ये भी इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। अब देखिए यहां पर हमने सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ABC is a right angle triangle and which is right angle at point B. In triangle ABC, angle B is 90 degree. So what will be the value of other angles? If one angle is right angle, so other two angles, remaining two angles will be acute angle, okay? क्योंकि ये right angle नहीं हो सकता, sum of two angles is not 90, sum of all these three is 180 degree. So each angle will be acute. So this implies that angle A and angle C are acute.
एक्यूट एंगल्स. ओके, माने ए और सी कैसे होंगे? एक्यूट होंगे. और व्हेन वी कंपेयर विथ एंगल बी, इफ वी कंपेयर एंगल सी विथ एंगल बी, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी. क्यों? क्योंकि बी कैसा है? राइट एंगल, और ये ए और सी कैसे हैं? एक्यूट है. तो बी क्या होगा? ग्रेटर होगा एंगल सी से. और अभी हमने पढ़ा हुआ है कि द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल बी है, इसका अपोजिट साइड क्या है? AC will be greater than side opposite to acute angle AC. Sorry, AB. So AC is greater than AB. So AC is greater than AB. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. AC क्या था? हाइपोटेनस था. तो AC AB से ग्रेटर होगा. सिमिलर यहां चाहे तो आप रीजन भी लिख सकते हैं. रीजन क्या होगा इसका? साइड अपोजिट टू greater angle is longer. Similarly, angle A is angle B is greater than angle A. Similarly, angle A is smaller than angle B. ऐसा भी लिख सकते हैं, या B को पहले लिख सकते हैं. अब A का अपोजिट साइड क्या है? BC. BC will be smaller than the side opposite to angle B, AC. Means again here, or AC is greater than BC. In both the cases, AC is greater than AB and AC is greater than BC. माने AC जो hypotenuse है, that is hypotenuse is the लॉन्गेस्ट साइड. ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ये इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, तो आप इसको कर सकते हैं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो यहां देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है? AB स्मॉलेस्ट है और CD लॉन्गेस्ट साइड है. तो हम एक यहां पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज AB. This is AB is the smallest and CD is the longest side of the quadrilateral. So in quadrilateral ABCD, AB is smallest and CD is the longest side. माने इसका मतलब क्या हुआ कि AB इन अदर 3 साइड से स्मॉलर है. AB is smaller than BC, AB is smaller than AD, AB is smaller than CD. और CD लॉन्गेस्ट है, माने CD is greater than AD, CD is greater than AB and CD is greater than BC. नाउ अब हमको ये एंगल्स के बारे में बात करनी है. तो अभी हमने जो इक्वलिटीज पढ़ा हुआ है, इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल, अभी हमने इनइक्वलिटीज ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ तो ट्रायंगल नहीं है, तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ डायगोनल AC. हमने क्या किया? ड्रॉ डायगोनल AC. जब हमने AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया, देन वी हैव 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle ACD. Okay, so in triangle ACD, in triangle ABC, look at here, ABC, what we have? AB is the smallest side. तो AB जो smallest है, तो ये AB is smaller than BC, या BC will be greater than AB. So this implies that BC is greater than AB. क्यों? क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है, तो BC इससे ग्रेटर होगा. और जब BC ग्रेटर है इन दिस ट्रायंगल ABC, तो इसका जो BC का अपोजिट एंगल क्या है? 1, और AB का अपोजिट एंगल 2. तो एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल
2। रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट टू longer side is greater. Okay, now similarly in triangle we take another triangle ACD. CD is the longest side, so CD is greater than AD. ये given है. CD is the longest side, so CD is greater than AD. So again, with the same reference of the inequality, the angle opposite to CD, that is angle 3, and this angle is 4. So angle 3 will be greater than angle 4 by the same reason. ये जो reason है वो same होगा. The angle opposite to longer side will be greater. अब आपने इसको नंबर 1 कर दिया, ये नंबर 2 है. On adding 1 and 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, ये जो रिलेशन है. तो देखिए ग्रेटर वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा? ग्रेटर होगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 will be greater than the sum of the smaller values, angle 2 plus angle 4. अब देखिए 1 और 3 क्या है? 1 और 3 जो है वो एंगल BAD. So this gives angle BAD will be greater than angle 2 plus 4 is BCD, angle BCD, and angle BAD nothing but it is angle A. So angle A is greater than angle C. So this is number 3. Okay, this is number 3. अब ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया. अब हमको B और D के लिए प्रूव करना है, तो हम फिर से क्या करेंगे? एक नया क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करेंगे. देखिए एक हमने फिर से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ABCD, और अब हम यहाँ पर BD एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. हम क्या करेंगे? BD डायगोनल ड्रॉ करेंगे. अगेन वी हैव, जैसा हमने इन दो ट्रायंगल्स के लिए किया था वैसा ही अब हम ट्रायंगल ABD और BCD के लिए करेंगे. अब यहाँ देखिए ये सपोज एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है. तो अब हमको ये रिलेशन देखना है. देखिए इन ट्रायंगल ABD what we have? AB is the smallest, so AD is greater than AB. AD is greater than AB because AB is the smallest side. तो AB जो AD का अपोजिट एंगल है एंगल 5 will be greater than angle 6. This is number 4. रीजन वही होगा, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. एंड इन ट्रायंगल BCD what we have? CD is the longest side, so CD is greater than BC. CD BC से ग्रेटर होगा, तो CD का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? एंगल 7 will be greater than angle 8. This is 5 और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंगल 5 प्लस एंगल 7 will be greater than angle 6 plus angle 8. और एंगल 5 प्लस 7 क्या होगा? इट इज एंगल B will be greater than 6 plus 8. Sum of angle 6 plus 8 is angle D. ये हमारे पास एक और दूसरा रिलेशन हो गया कि एंगल B is greater than angle D. तो ये रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस है जो हमने इन दो ट्रायंगल्स के लिए किया है वो सेकंड के लिए. आप दोनों के लिए सेपरेट आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप यदि आप यहाँ इसमें ड्रॉ करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज ना हो. इसलिए आप सेपरेट पार्ट ड्रॉ करके फिगर ड्रॉ करके उनको प्रूव कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ट्रायंगल PQR, PR is greater than PQ.
and PS bisect angle QPR. Then prove that angle PSR is greater than PSQ. हालांकि इसका डायग्राम आपका नोटबुक में दिया है, बट डायग्राम नहीं दिया तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे देखिए, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR व्हाट वी हैव, PQR, PR ये साइड PQ से ग्रेटर है. इन ट्रायंगल PQR PR इज ग्रेटर देन PQ. अब जैसे ही आपने इस ट्रायंगल में लिखा कि PR इज ग्रेटर देन PQ, आपके दिमाग में जो फर्स्ट इनइक्वालिटी था कि यदि ये साइड ग्रेटर है तो इसका जो अपोजिट एंगल है Q विल बी ग्रेटर देन एंगल R. एंगल दिस इंप्लाइज दैट एंगल Q विल बी ग्रेटर देन एंगल R. माने ये ऑटोमेटिकली आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा. ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, PS बाइसेक्ट एंगल QPR. PS बाइसेक्ट एंगल QPR माने एंगल P का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दैट इज PS. PS बाइसेक्ट एंगल QPR मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सिंस PS बाइसेक्ट एंगल QPR, this shows that angle 1 equals to angle 2. ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ओके, अब देखिए यहां पर एंगल 1 और 2 इक्वल है और एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R है. हमारा पर्पस क्या है, PSR. PSR ये जो एंगल है इसको हमें ग्रेटर बताना है. किससे, इस एंगल से, PSQ से. अब यहां देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये रिलेशन देखी, एंगल Q और एंगल R. एंगल सिंस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R. ओके, अब यदि ये बड़ा है, इससे ग्रेटर है, और यदि हम दोनों साइड में इक्वल पार्ट ऐड कर दें तो इस रिलेशन में, इनइक्वालिटी का जो रिलेशन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल Q प्लस एंगल 1 is greater than angle R plus angle 2. ये यहां थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल आप बना रहे हैं एंगल और ग्रेटर का या स्मॉलर का, इसमें थोड़ा चेंज है. एंगल में ये जो लोअर आर में ये पैरेलल हो जाएगा और इसमें पैरेलल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो वो सारे सिंबल एक जैसे दिखने लगते हैं. अब यहां पर देखिए Q इज ग्रेटर देन एंगल R. Q में हमने एंगल 1 को ऐड कर दिया और R में एंगल 2 को ऐड कर दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है. तो इस रिलेशन में ये जो सिंबल है ग्रेटर का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. अब देखिए एंगल Q प्लस एंगल 1, एंगल Q और एंगल 1 इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल इन ट्रायंगल PSQ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two opposite interior angle. ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देखा था. यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सिंस एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल 1, चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंड एंगल R प्लस एंगल 2 is equal to angle PSQ, and angle PSQ is equals to angle R plus angle 2 with the same property. But what we have, this part is greater, this part is greater, चाहे तो आप इसको नंबर 1 लिख दें. So from 1 what we have in place of angle 1 Q plus angle 1 is angle PSR will be greater than angle R plus angle 2. Angle R plus angle 2 is what? Angle PSQ. और ये देखिए यहां पर ये PSR is greater than PSQ, और यही आपको प्रूव करना था. तो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो इनइक्वालिटी पर बेस्ड हैं, उनको आप करके देखिएगा, और यदि कहीं कोई डिफिकल्टीज हैं तो वो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.